إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وعملا رب زدني علما وعملا وفهما اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تتبع خيرا فهو خير له وقال عز من قائل سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
احباب ذی وقار، معززات سامعات، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس زمین پر بھیجا، پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ یہ بچوں سمیت یہاں بیٹھے سارے ہی لوگ تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے والے کچھ اور ہوں گے، اس منبر پہ کھڑے ہونے والے کچھ اور ہوں گے، پھر وہ ہمیں قبروں سے اٹھائے گا اور ہم اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دیں گے۔ آتیہ یوم القیامت فردا لقد احصاہم وعدہم عدا، کہ اکیلا اکیلا ایک ایک پوری اول تا آخر انسانیت جمع اکیلے اکیلے کو اللہ پکار کے کہیں گے فلاں بن فلاں آ جائے، وہ مجھے اپنی زندگی کا حساب دے، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، رب اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا، کوئی باتوں کو آگے بیان کرنے والا، کوئی وکالت کرنے والا اور نہیں ہوگا۔ جج بھی وہ اکیلا ہوگا اور ملزم بھی یہ انسان اکیلا ہوگا۔ پھر وہ فیصلہ کرے گا تو جس کے اعمال اسے پسند آئیں گے اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت میں بھیج دے گا، اور جس کے اعمال اچھے نہیں لگیں گے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب تو حقیقت میں وہی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور جس دنیا کے پیچھے اتنی بھاگ دوڑ ہے یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ اس آخرت کے ذخیرے کے لیے ہم اس کائنات میں آئے، ہمارے اوپر اللہ نے کچھ فرائض عائد کر دیے کہ یہ کام تو تم پر کرنا فرض ہے، اور کچھ ہمارے لیے ہماری چاہت اور منشا پہ ان کو چھوڑ دیا کہ یہ نفل ہیں، کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو اس لیول کا گناہ نہیں۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، ان کی اداؤں کو ہمارے لیے سنتیں بنا دیا۔ وہ سنتیں، وہ نوافل، ان کو ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ 5 وقت کی نمازیں، یہ فرائض، ان کے ساتھ ادا ہونے والی سنتیں، ان کا انشاءاللہ الرحمن آج ہم تذکرہ کریں گے۔ دنیا میں ہمارے لیے سب سے عظیم وہ ہے، ہمارا سب سے بڑا
ہمارے اوپر احسان اس کا ہے جو ہمیں آ کے یہ بتا دے کہ جس دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، جس جج اللہ رب العزت نے وہ فیصلے کرنے ہیں، انہیں یہ کام پسند ہے اور یہ ناپسند ہے۔ سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اس کا ہے، کیونکہ اگر ہم ساری زندگی عمل کرتے رہیں، پیسہ بھی لگائیں، دولت بھی خرچ کریں، وقت بھی لگائیں، محنت بھی کریں، قیامت والے دن رب کہہ دے تو مجھے یہ پسند ہی نہیں، تو وہ کسی کام کا نہیں۔ صرف چور، شرابی، ڈکیٹ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تسلا نارن حاویہ عاملۃ ناصبہ، لوگوں کی پیشانیاں عبادتیں کر کر کے ماتھے کسے ہوئے، نشان پڑے ہوئے، رب ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ ان کے وہ اعمال رب کو پسند نہیں۔ تو سب سے بڑا احسان اس کا ہے جو اللہ سے ملاقات کر کے، رب سے ہو کے آئے اور آ کے ہمیں یہ بتائے کہ تمہارے رب کو یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے۔ صحابہ کرام میں نیکیوں کا بڑا شوق ہوتا تھا، ہر انسان اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے۔ کہیں ایک صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتی ہے، اللہ کے نبی یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ دوست ہیں، یہ بھی صحابہ کرام ہیں، ان کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، یتصدقون ویحجون، یہ اس پیسے سے صدقہ کر دیتے ہیں، پیسہ ہے، حج کرتے ہیں، جو نیکیاں پیسوں سے ہو سکتی ہیں وہ یہ کرتے ہیں، باقی جو ہماری نیکیاں ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اس نیکی میں یہ ہم سے آگے ہیں، کوئی حل ہمیں بتا دیں کہ ہم بھی ان کی طرح کے نیک بن جائیں۔ ہر وقت یہی فکر ہے کہ کہیں میں نیکیوں میں اس سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور پھر سو کے فکر کو پورا کرنے کے لیے یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں ان کے برابر نیکیاں عطا کرے گا۔ یہ سن کے چلے جاتے ہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہ کریں، وجہ یہ ہے کہ ہم بھی نیکیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، ان کو بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ عمل وہ بھی شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ آپ کے پاس آ گئے، اے اللہ کے نبی دیکھیں ان کے پاس پیسہ دولت بھی ہے، وہ نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے ہمیں آلٹرنیٹ دیا تھا وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے، جو ان کا متبادل تھا وہ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ اذکار بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ باقی اعمال، یہ صدقہ خیرات، یہ حج اور باقی نیکیاں، مالی عبادات وہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کہنے لگے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، لیکن یاد رکھو ان سے 500 سال پہلے تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ ان کا یہ سارے مال کا حساب دے کے آئیں گے، تمہارے پاس حساب کے لیے کچھ نہیں، تم جنت میں پہلے چلے جاؤ گے۔ وہ اسی بات پہ خوش ہیں کہ ہم پہلے جنت میں جائیں گے۔ شوق یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، جذبہ یہ ہے کہ میری نیکیاں اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ میرے صحابہ آج مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، فلاں جہاد کے لیے، فلاں غزوے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، پیسے لے کر آؤ۔ صحابہ کرام پیسے جمع کرنے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب امیر المؤمنین خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ آج
ان हालात के अंदर तो मेरी माली हालत अच्छी है। जिंदगी में हमेशा ऐसे हुआ है कि अबू बकर मुझसे आगे था, उमर पीछे था, आज मेरी माली हालत अच्छी है, आज मैं ऐसा करता हूँ अबू बकर से आगे बढ़ जाता हूँ। घर में गया, सारे माल को जमा कर लिया, उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, आधा घर में रखा, आधा लेकर आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सबसे पूछते हैं तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो। उमर से पूछा जाता है उमर तुम क्या लाए हो। अल्लाह के नबी सारा माल मैंने जमा किया, उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा आपकी खिदमत में ले आया, आधा घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अबू बकर अब तुम बताओ तुम क्या लाए हो। कहा अल्लाह के नबी सारे घर का माल जमा किया और सारा ही उठा के आपके लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी पूछते हैं अबू बकर घर क्या छोड़ा है। अल्लाह के नबी का ये सहाबी अबू बकर कहता है फमा तरक्तु इल्ला हुब्बल्लाहि व हुब्ब रसूलिही, घर में अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ, बाकी सब कुछ ले आए। ये शौक उमर ये कह रहे हैं कि आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ूंगा, आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। ये शौक कि मैं नेकी में उससे आगे चला जाऊं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबा को कहते हैं मेरे सहाबा कौन है जिसने आज नफली रोजा रखा हुआ है। अबू बकर खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के नबी मैंने रखा है। फिर सवाल होता है कौन है जिसने आज किसी जनाजे में शिरकत की है। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के नबी मैंने रोजा रखा है। फिर फिर मैंने जनाजे में शिरकत की है। फिर सवाल होता है आज किसी बीमार की बीमार कुर्सी किसने की है। फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते हैं। फिर सवाल होता है आज किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है। फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मेरे सहाबा मइस्तमाना फी इम्रीन इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्ना, जिस बंदे में एक दिन के अंदर ये चारों नेकियां जमा हो जाती हैं अल्लाह उसे जन्नती होना लिख देता है, रब उसका जन्नती होना लिख देता है। कभी इसका एहतमाम करें कि ये चारों नेकियां कभी जिंदगी में एक दिन तो ऐसा आए कि ये चारों नेकियां मेरी जिंदगी में जमा हो जाएं। बीमार की बीमार कुर्सी भी की, जनाजे में शिरकत भी की, मिस्कीन को खाना भी खिलाया, नफली रोजा भी रखा, ये सारे एहतमाम किए, अल्लाह उसका जन्नती होना लिख देते हैं। अबू बकर को शौक क्या है कि मैं नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा, मेरी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, मेरी नेकियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन पूछती हैं अल्लाह के नबी ये आसमान की छत सारी की सारी नीली छत सितारों से भरी हुई है, हर तरफ सितारे ही सितारे हैं, मैं गिनना चाहूं तो गिन नहीं सकती हूँ। अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि क्या कोई शख्स दुनिया में ऐसा है जिसकी नेकियां इन सितारों की तरह बहुत ज्यादा हों। अल्लाह के नबी कहने लगे आयशा बिल्कुल है। कहा अल्लाह के नबी वो कौन है। कहा वो उमर इब्न खत्ताब है। आयशा परेशान सी हुई। कहा आयशा परेशान क्यों हो। कहा मुझे लगता था कि तुम मेरे बाबा अबू बकर का नाम लोगे, आपने उमर का नाम ले दिया है कि उनकी नेकियां इतनी ज्यादा हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा उमर की सारी जिंदगी की नेकियां इतनी हैं, तेरे बाप अबू बकर सिद्दीक ने मेरे साथ जो बार में एक रात गुजारी थी उस रात की नेकियां इतनी ज्यादा है। शौक ये है मेरी नेकियां बढ़ जाएं, मेरी नेकियां आगे चले जाएं, मेरा नेकियों का तराजू वज़नी हो जाए, मेरे नामा अमाल में वजन ज्यादा हो जाए। ये शौक सहाबा किराम का हर वक्त रहता था, हर किसी का रहता था। हर कोई इसी शौक में है कि अल्लाह के नबी ने अगर किसी को ये कह दिया ना कि ये जन्नती है तो उसके पीछे चले जाते थे, देखते हैं ये क्या करता है, ये इसका अमल क्या है, इसकी नेकियां क्या है। ये शौक अपने अंदर पैदा करना, ये जज्बा मुसलमानों में रखना। जैसे हम अपने आप के बारे में, अपने माल दौलत के बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में ये देखते हैं ना कि मेरे फुलां भाई के पास, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे ये ना कहें कि बाबा तुम हमारे लिए क्या छोड़ के गए हो, देखो फुलां का बाप दुनिया से गया है, इतनी विरासत दुनिया के लिए छोड़ के गया है। जहां हमें बहुत ज्यादा ये फिक्र होती है वहां ये फिक्र भी होनी चाहिए कि जहां मैं अपनी औलाद के लिए बहुत सा पैसा छोड़ के जाऊंगा वहां मैं अपने लिए साथ में बहुत सी नेकियां भी लेके जाऊंगा। ये फिक्र, ये तमन्ना अपने अंदर, ये हमेशा से ये सोच
कि कौन से अमाल ऐसे हैं कि मेरी नेकियां बहुत बढ़ जाएं, मैं जब दुनिया से जाऊं तो बहुत सी नेकियां मेरे साथ जाएं। याद रखिएगा ये शौक सहाबे किराम का यही वजह है। अल्लाह ताला भी तो यही कहते हैं, वतिलकल जन्नतुल लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, रब ने तुम्हें जन्नत का वारिस बनाया है। अल्लाह की रहमत उसमें बुनियादी चीज है, लेकिन वजह पीछे बिमा कुंतुम तामलून, वजह ये होगी जो तुमने अमाल किए हैं। हम ये समझ बैठे हैं कि कलमा पढ़ लिया है, कभी कभी मस्जिद में आ जाते हैं, जुमा भी आके अदा कर लेते हैं, बस जन्नत हमारी पक्की है और इसका कोई हकदार नहीं हो सकता, हम ही जन्नती हैं। अल्लाह कहता है वतिलकल जन्नतुल लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, रब तुम्हारे अमाल देखता है, वो नेकियां देखता है, वो किरदार देखता है। अल्लाह ये देखता है कि तुमने नेकियां कितनी की हैं। तो याद रखिएगा ये नेकियां ये करते चले जाना, ये हमारे जन्नत में जाने का जरिया है। सहाबा किराम हर वक्त यही देखते रहते थे किसकी नेकियां ज्यादा है। हम देखते हैं अपने से घटिया तरीन इंसान को, पीछे गिरे हुए इंसान को। देखो ना, मैंने तो छोटी छोटी दाढ़ी रखी हुई है, दुनिया में कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने इतनी भी नहीं रखी, मैं तो फिर भी 2-3 नमाजें पढ़ लेता हूँ। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इतनी भी नहीं पढ़ते हैं, मैं तो फिर भी कभी कभी कुरान की तिलावत कर लेता हूँ। कितने ऐसे हैं जिन्होंने नाज़रा भी नहीं पढ़ा हुआ, मैं तो फिर भी कभी कभी अस्कार कर लेता हूँ, कभी कोई जिक्र मुंह से बोल देता हूँ। कितने ऐसे हैं जो हर वक्त गालियां ही देते रहते हैं। हम देखते हैं उस इंसान को जो गिरा पड़ा है गंदगी के अंदर, गलाजत के अंदर, गुनाहों के अंदर, उसको देखते हैं। सहाबा किराम और हमारे अस्लाफ उनको देखा करते थे जो नेकियों में आला मिराज के ऊपर होते थे, जो बहुत आगे बढ़ चुके होते थे। उनको देख के ये शौक पैदा करते थे कि मैं जैसा कैसे बन सकता हूँ, मेरी नेकियां इतनी ज्यादा कैसे हो सकती हैं, मेरी जिंदगी इतनी नेकियों वाली वो कैसे गुजर सकती है। उनमें हमेशा ये शौक रहता था। आइए चंद अहादीस सुन्नतों के हवाले से ऐसी जिक्र करता हूँ कि जो हमारी आखिरत के लिए बहुत सा ज़खीरा जमा कर देगी। उन सुन्नतों पे अगर हम अमल शुरू कर दें, वो काम शुरू कर दें, तो बहुत सा नेकियों का ज़खीरा, वो नेकियों का शौक हमारे लिए पैदा हो जाएगा। हमने ये नहीं देखना कि देखो मैं फर्ज तो पढ़ता हूँ ना, कितने ऐसे हैं जो फर्ज भी नहीं पढ़ते। मैंने ये देखना है कि मैं इतनी सुन्नतें पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो इससे भी ज्यादा एहतमाम से सुन्नतें पढ़ते थे। आपकी सुन्नतें कितनी थी, आप कैसे दीन पे अमल करते थे। हमने इन बातों को बुनियाद बना के अपने अंदर वो शौक पैदा करना है। सबसे पहले फजर की सुन्नतें हैं। फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रकातल फज्री खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। लोगों, दुनिया कायनात के अंदर जितना कुछ भी है, उन सबसे खूबसूरत अल्लाह को फजर की 2 सुन्नतें लगती हैं। फजर की 2 सुन्नतें इस दुनिया कायनात में जो कुछ है सबसे ज्यादा कीमती हैं। कैसे कैसे कीमती जवाहरात इस दुनिया में पाए जाते हैं, जमीन में कैसे कैसे हीरे पाए जाते हैं। एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा वो लाखों का मिलता है, और उस तरह के पत्थर के अल्लाह ने पहाड़ दुनिया में पैदा किए हैं। कितने जखीरे अल्लाह ने दुनिया में रखे हैं। ये सारे जखीरे इकट्ठे कर लिए जाएं, ये सारे जवाहरात इकट्ठे हो जाएं, दुनिया की सारी दौलत के अंबार लग जाए, जमीन और आसमान माल और दौलत से भर जाए, ये सारा कुछ एक तरफ हो और फजर की 2 रकतें एक तरफ हो। अल्लाह कहता है ये सारी दुनिया के खजानों से मुझे फजर की 2 सुन्नतें प्यारी लगती हैं। रकातल फज्री खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 सुन्नतें मुझे कायनात की हर चीज से ज्यादा प्यारी लगती हैं। यहाँ पे एक मसला भी सुनते जाइए। फजर की नमाज खड़ी हो जाती है, लोग आते हैं, बाहर से आया भागा भागा, देखा नमाज खड़ी है, कहता है फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं होती, लिहाजा इमाम नमाज फर्ज पढ़ा रहा है, मैं जल्दी जल्दी से सुन्नतें पढ़ के फिर शामिल हो जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है, इदा उकीमतिस सलातु फला सलात इल्ला मक्तूबा। जब फर्ज नमाज की इकामत कह दी जाए, फिर फर्ज के अलावा कोई और रकत नहीं होती, फिर कोई नमाज नहीं है, फिर सिर्फ वही रकतें पढ़नी है जो इमाम पढ़ा रहा है। इमाम के साथ शामिल हो जाइए, कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो मना किया है कि फजर के बाद कोई सुन्नतें, कोई नमाज नहीं, वो कोई और नफल नमाज है, अगर फजर की ही सुन्नतें रहती हों तो उनको बाद में पढ़ने में कोई हरज नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने नमाज फजर के बाद
2 रकते पढ़ रहे थे। आप कहते हैं कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हो? कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं ये फजर की सुन्नतें पढ़ रहा हूँ। फलम युनकिरु अला ज़ालिक, आपने उनको मना नहीं किया है, आपने उनको बुरा भला नहीं कहा है, उनको खामोशी से आप गुजर गए। गोया कि आपका खामोश रहना ये आपकी रजामंदी की अलामत थी, ये आपकी इजाजत की अलामत थी। आपने उन्हें इजाजत दी है कि फजर के बाद फजर की सुन्नतें पढ़ सकते हैं। दौड़ के आना, इमाम फर्ज पढ़ा रहा हो, पीछे आप सुन्नतें पढ़ मिले, अल्लाह के नबी का फैसला है, ये होती ही नहीं है, इनकी कोई असलियत और हकीकत नहीं है। आप अलैहिस्सलाम की बहुत सी हदीस इस मौजू पर हैं। तो खुलासा यही है कि फजर की जब नमाज खड़ी हो जाए, कोई भी फर्ज खड़े हो जाए, अगर आपने 1 रकत पढ़ ली है, 1 बाकी है, आपने दूसरी के रुकू में चले गए हैं, आपको पता है कि मैं सलाम नहीं फेर सकता, इमाम के अल्लाह अकबर कहने तक आपको चाहिए आप वहीं पर उन रकतों को छोड़ें और आके फर्जों के साथ शामिल हो जाएं। बाद में दोबारा वो फर्ज अपनी सुन्नतें अदा कर लें। याद रखिएगा, रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, ये सारी कायनात से अल्लाह को प्यारी लगती हैं, ये बड़ी महबूब सुन्नतें हैं। आगे बढ़िए, जोहर की नमाज आती है। जोहर की नमाज से पहले जो बंदा 4 रकतें पढ़ लेता है और जोहर की नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ता है, ये 12 सुन्नतें जब पूरी कर लेता है, उनकी जो अज़मत है वो तो हम आखिर पे जिक्र करते हैं। जहाँ 4 रकतें उसने जोहर से पहले पढ़ी हैं, जोहर के बाद 2 रकतें पढ़नी थी, एक उसमें अगर इजाफा कर ले, 2 की बजाय जोहर के बाद भी 4 रकतें पढ़ ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मन हाफ़ज़ा अला अर्बाइन क़ब्ल अज़-ज़ुहरी व अर्बाइन बादहा, जो बंदा 4 रकतें जोहर से पहले पढ़ता है और 4 रकतें ही जोहर के बाद भी पढ़ लेता है, 2 पढ़ता तो 5 मिनट लगने थे, 2 करके 4 पढ़ लेता है, ये 4 रकते जोहर के बाद भी पढ़ लेता है, हर्रमल्लाहु अलैहि नार, रब उसे जहन्नुम के लिए हराम कर देता है। जिसकी ये रूटीन बन जाए कि वो जोहर के बाद 2 की बजाय 4 रकते पढ़ता है, अल्लाह के नबी का फैसला है, जहन्नुम की आग इस पर हराम हो चुकी है, ये जहन्नुम में नहीं जाएगा। ये जोहर की सुन्नतें पढ़ी, फिर आगे बढ़ा, असर का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके कहते हैं राहिमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अरबान, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारा नबी दुआ करता हूँ। कौन दुआ करता है? कायनात के इमाम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो दुआ करते हैं अपनी उम्मत के लिए। कहा राहिमल्लाहु इमरान कब सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अरबान, जो असर से पहले 4 रकते सुन्नत अदा कर लेता है, मैं नबी दुआ करता हूँ अल्लाह उसे अपनी रहमत में ढांप ले, अल्लाह उसे अपनी रहमत में ढांप ले। कायनात के लोगों, उन 4 स्टेट के वासियों, याद रखिएगा, हम अल्लाह की रहमत की एक बूंद के मोहताज हैं। अल्लाह की कसम है, वो रहमत हमें एक बूंद, एक कतरा हमें अगर वो रहमत में ढांप ले तो हमारी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएं और क़यामत के भी सारे मसले हल हो जाएं। उसी एक रहमत की बूंद पे हम जन्नतों के वारिस बन जाए। वो एक रहमत ही तो हमें चाहिए, जो एक रहमत वो हम पे कर दे और हमारे सारे बेड़े ही पार हो जाएं। वो एक रहमत के लिए वो रहमतों की दुआ अल्लाह के नबी करते हैं। ऐ अल्लाह, जो असर से पहले 4 रकते सुन्नत अदा कर ले, ऐ अल्लाह तू उसकी अंग अंग को रहमत पे ढांप ले, अल्लाह उसे रहमतें अता कर दे। ये असर की नमाज पढ़ता है, ये सिर्फ सुन्नतों की बात है। फिर मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया है, मस्जिद में अजान हुई, मस्जिद में अजान होते ही पहुंच चुका था। अजान और नमाज में इतना वक्फा होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पे अमल हो सके। आप कहते हैं लोगों, सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिब, सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिब, सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिब फमन शाअ, हर बंदा मगरिब से पहले नमाज पढ़ा करो, मगरिब से पहले सुन्नतें पढ़ा करो। फिर तीसरी मर्तबा कहा मगरिब से पहले जो चाहे सुन्नतें पढ़ ले। पहले 2 मर्तबा यही कहा कि मगरिब से पहले सुन्नतें पढ़ा करो, तीसरी मर्तबा कहा जो चाहे पढ़ ले, इसलिए कि कोई इसे फर्ज ना समझ ले। सहाबा ने इस पर ऐसा अमल किया, ऐसी इस पर दवाम इख्तियार किया, ऐसी हवेस इस पर की है कि सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी बयान करते हैं कि जब लोग मस्जिद में आते, अगर बाहर से कोई मस्जिद में आता, मगरिब की अजान होने के बाद इतनी कसरत में लोग सुन्नतें अदा कर रहे होते थे कि आने वाला देख के समझता था कि शायद मगरिब की जमात हो चुकी है, ये बाद वाली सुन्नतें पढ़ रहे हैं। और आज अल्लाह के फजल से ये सुन्नत सिर्फ और सिर्फ इन मसाजिद में नजर आती है, जो किताब सुन्नत का खालिस किताब सुन्नत का नाम लेते हैं।
वहां भी आज भी ये सवाल होता है, बाहर से आने वाला कोई देख के यही समझता है कि लगता है मगरिब की नमाज हो चुकी है, इतने लोग सुन्नतें अदा कर रहे हैं, ये आपकी ऐसी सुन्नत है जिस पर सहाबा ने सब ने अमल किया है, सारे सहाबा ने अमल किया है और सारी जिंदगी अमल किया है। न जाने क्यों लोगों ने इस सुन्नत को इतना अजनबी बना दिया कि मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, नबी का उम्मती है, सदके जाऊं, बारी जाऊं, नबी का उम्मती हूं, आज के रसूल और मोहब्बत रसूल के दावे करता हूं, लेकिन इतना अजनबी है बेचारा, उसे ये पता ही नहीं कि ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। कितनी दफा हमारी मसाजिद में ऐसा हुआ है, हमारे पास लोगों ने आके कहा है कि क्या सुन्नतें हो चुकी। हमारे एक साथी हमारे पास आके एक साथी कहता है, बुजुर्ग सा था, काफी उम्र हो चुकी थी, कहता है मेरे ये मगरिब की ये कौन सी सुन्नतें पढ़ रहे हैं। उसे बताया कि ये तो मगरिब से पहले की सुन्नतें हैं। कहता है किसी और मस्जिद में मैंने नहीं देखा, मैंने आज तक बुजुर्गी की उम्र को पहुंच गया हूं, मैंने आज तक ये अमल नहीं देखा, हमारी मस्जिद में तो नहीं होता। उसे आगे से हदीस सुनाई, अल्लाह की कसम इसे ईमान कहते हैं। उस बुजुर्ग ने ये नहीं कहा कि मैंने सारी जिंदगी नहीं देखा, हदीस सुनने के बाद उसने उसी वक्त हमारे सामने वो सुन्नतें पढ़नी शुरू कर दी कि मैंने अल्लाह के नबी की हदीस सुन ली है। इसे ईमान कहते हैं, ये ईमान है, ये है तकवा, इसे मिल्लाहियत कहते हैं। मगरिब से पहले इस सुन्नत को जिंदा करना, ये नमाज पढ़ना, मगरिब से पहले इस सुन्नतों को जिंदा करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मा बैन कुल्ली अदानैनि सलातुन, हर अजान और इकामत के दरमियान में सुन्नतें होती हैं। मगरिब से पहले इतना वक्फा देना, आके सुन्नतें अदा करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मगरिब से आगे बढ़िए, फिर मगरिब के बाद वाली 2 रकअतें हैं, फिर इशा से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया आम मामूल था, आप कभी 2 रकते पढ़ते, कभी 4 रकते पढ़ते थे। 2 रकतों के बारे में तो आम हदीस बैन कुल्ली अदानैनि सलातुन के हर अदान और इकामत के दरमियान में 2 रकतें सुन्नत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में आते या घर से ही वो सुन्नतें अदा करके आते, 2 रकतें आप सुन्नत की इशा से पहले भी पढ़ते, इशा के 4 फर्ज पढ़े, उसके बाद फर्ज अदा करने के बाद फिर आप 2 रकतें सुन्नत इशा के बाद भी अदा करते। ये 12 रकतें तो आपका मामूल था जो आपने कभी नहीं छोड़ी थी। फजर से पहले की 2 रकतें, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2, ये 12 रकते वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला फी यौमिन व लैलतिन इत्नतै अशरता रकअतन, जो बंदा दिन और रात के अंदर 24 घंटों में इन 5 नमाजों के अंदर इन 12 रकतों पर हमेशा कर लेता है, जो हमेशा इन 12 रकतों को पढ़ता रहता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, रब उसका जन्नत में एक महल तैयार कर देता है, रब उसका जन्नत में महल बना देता है। आगे सुनिएगा, सही मुस्लिम की ये लफ्ज है, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, वो बयान करती हैं, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये हदीस सुनी कि जो 12 रकते पढ़े अल्लाह उसका जन्नत में महल बना देता है। उम्मे हबीबा कहती हैं, फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने अल्लाह के नबी से ये हदीस सुनी है, पूरी जिंदगी फिर मैंने कभी 12 रकतों को नहीं छोड़ा है। आगे बढ़िए, उम्मे हबीबा से बयान करने वाले अंबसा हैं, अंबसा कहते हैं, फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतु मिन उम्मी हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब से मैंने ये हदीस उम्मे हबीबा से सुनी है, तब से लेके पूरी जिंदगी फिर मैंने कभी इस हदीस को, इन सुन्नतों को नहीं छोड़ा। अंबसा से बयान करने वाले अमर हैं, वो बयान करते हैं, जब से मैंने फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतु मिन अंबसा, जब से मैंने अंबसा से ये हदीस सुनी है, तब से मैंने कभी इन सुन्नतों को नहीं छोड़ा। अमर से बयान करने वाले सालिम है, सालिम कहते हैं, फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतु मिन रसूल मिन अमरिन, जब से मैंने उनसे सुना है, तब से सालिम कहते हैं, मैंने इन सुन्नतों को नहीं छोड़ा। यानी जो जो सुनता गया है वो सारी जिंदगी का मामूल बनाता गया है। जिसने सुन लिया उसने अपने सीने में उतार दिया, जिसने सुन लिया उसने जिंदगी भर कभी उस सुन्नतों को नहीं छोड़ा। चाहे कि मुसलमान फर्ज भी बिस्तर पे जाया कर दे, उसकी फजर भी बिस्तर पे जाया होती हो, उसके फर्ज भी दुकानों पे जाया हो जाते हों, उसके फर्ज भी इधर उधर जाया हो जाते हों। सहाबा और सलफ का अमल तो ये था कि सारी जिंदगी जो सुन्नत को सुन लेते थे, फिर उसे कभी छोड़ना गवारा नहीं करते थे। ये 12 सुन्नतें वो दिन में अदा करता है। इशा के बाद की 2 रकतें हैं। आगे बढ़िए, अगर वो इशा के बाद
2 की बजाय 4 रकअतें अदा कर लेता है। 3 सहाबा किराम हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस हैं और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये तीनों सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं। और जब सहाबा कोई ऐसा अमल बयान करें जो अपने इज्तिहाद से अपनी तरफ से नहीं कहा जाता तो उसे हुक्मन मरफू कहते हैं। मतलब ये है कि अगरचे ये सहाबी बात कर रहे हैं लेकिन ये बात अपनी तरफ से नहीं हो सकती, गोया कि इन्होंने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से सुना है। ये तीनों सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन सल्ला अरबान बादल इशाई फलम यफसिल बैनहुन्ना बितस्लीमी, जो बंदा इशा के बाद 4 रकअतें अदा कर लेता है और उनमें सलाम नहीं फेरता, मतलब 2-2 करके नहीं पढ़ता, चारों इकट्ठी पढ़ लेता है। इशा के बाद जो 4 रकअतें इकट्ठी पढ़ लेता है, ये कहते हैं कि अल्लाह उसे पूरी उन 4 रकअतों के बदले में इतना सवाब अता करता है जितना अल्लाह लैलतुल कदर में 4 रकअतें पढ़ने का अजर अता करता है। लैलतुल कदर की तलाश के लिए हम भागते हैं, रात जागते हैं, लोग एतिकाफ बैठते हैं, मेहनत करते हैं कि लैलतुल कदर में एक नमाज पढ़ ले तो 83 साल की इबादत से अफजल हो जाती है, 1000 महीने से अफजल हो जाती है। हम रोजाना ये अजर ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार से मामूल बना ले, महीने में एक दफा से मामूल बना ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बंदा 4 रकअतें इशा के बाद एक सलाम से पढ़ता है अल्लाह उसे इतना अजर देते हैं जितना लैलतुल कदर में 4 रकअतें पढ़ने का अजर मिलता है। लोगों, ये सुन्नतें अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आम मामूल हुआ करती थी। आप इन सुन्नतों को अदा किया करते थे। इनका इरादा बनाना, खुद भी इनको सीखना, अपने बच्चों को भी सिखाना। हमने जो फराइज हमारे ऊपर आए होते हैं वो तो हमने पढ़ने हैं, उनके बगैर चारा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी सख्ती करते हैं, कहा ऐ मेरे सहाबा सुन लो, मुझे ऐसे मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मुझे औरतों और बच्चों का डर ना हो तो मेरा जी ये चाहता है कि मैं अपने मुसल्ले पे किसी और बंदे को खड़ा करूं और नौजवानों की एक जमात को अपने साथ ले लूं और उन्हें हुक्म दूं कि वो लकड़ियों को इकट्ठा करें, लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाए और ढेर इकट्ठा करने के बाद मस्जिद में जमात खड़ी हो जाए और मैं फिर देखूं जिन घरों के अंदर जमात खड़ी होने के बाद भी मर्द अभी घरों में बैठे हुए हैं, मैं मोहम्मद का दिल ये करता है अगर उन घरों में औरतें और बच्चे ना हो जिनका जमात के साथ शामिल होना फर्ज नहीं है, अगर वो ना हो तो मेरा दिल ये करता है कि मैं आग लगा के उन घरों को जिंदा जला दूंगा। जो फर्ज नमाज मस्जिद में खड़ी है और ये घर में बैठा है, इसे उठने की तौफीक नहीं है, ये टीवी के सामने बैठा है, ये दुनिया की मसरूफियात में बैठा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरा दिल चाहता है उस घर को मैं दुनिया में आग लगा के जला दूं जिसे दुनिया में रहते हुए, रब की जमीन पे रहते हुए रब की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है, जिसे इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो उठ के आ जाए। जनाबे मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कौम को जाके जब नमाज पढ़ाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके पीछे कमजोर भी हैं, बूढ़े भी हैं। सहाबा कहते हैं कि इन्ना रजुलैनी बैन युहादैनी व युल्का फिस्सफ़ी, 2-2 बेटे, 2-2 जवान बेटे अपने बूढ़े बुजुर्गों को कंधों पे उठा के लाते थे और आके जमात के साथ उनको नमाज पढ़ाते थे। जमात के साथ नमाज मर्द के ऊपर इतनी जरूरी है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं, बीमार है फिर भी मस्जिद में आके अदा करेगा, जैसी हालत भी है आखिरी हद तक उसकी कोशिश होगी कि मस्जिद में आके अदा करे। ये तो फराइज हैं, ये तो फराइज हैं। सुन्नतों की असमत आपने सुनी है, अपने घरों में ये माहौल बनाएं। आज से इरादा करें जैसे सहाबा कहते हैं, वो सलफ कहते हैं, जब जब वो हदीस सुनते गए हैं वो कहते हैं उसके बाद हमने पक्का इरादा कर लिया आज के बाद हमने कभी इन सुन्नतों को नहीं छोड़ना। ऐसे ही हम भी इरादा कर लें कि हम भी इंशाअल्लाह कभी इन सुन्नतों को नहीं छोड़ेंगे, अपने बच्चों में ये माहौल बनाएंगे, अपने बीवी को ये कहेंगे, अपने घरों में ये माहौल बनाएंगे कि हम इंशाअल्लाह सारे के सारे इन सुन्नतों के पाबंद होंगे। ये 12 सुन्नतें भी पढ़ेंगे, इसके अलावा भी जो सुन्नतें हैं वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे जोहर से पहले 4 हैं, जोहर से बाद में 4 हैं, असर से पहले 4 हैं, इशा के बाद 4, ये इजाफी सुन्नतें हैं, ये भी पढ़ने की हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। जो पुख्ता इरादा कर लेता है, आपने हदीस सुनिए, जो पुख्ता इरादा कर लेता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के पास एक शख्स आया, आके कहता है अल्लाह के नबी
آپ مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، آ کے کہتا ہے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کہتے ہیں میں ہوں۔ کہتے ہیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہیں دور دراز سے آیا تھا۔ آپ کہتے ہیں میں یہ دعوت دیتا ہوں اللہ ایک ہے، مجھے نبی ماننا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ کہتا ہے اچھا 5 نمازیں، اس سے زیادہ تو نہیں کچھ؟ کہا اللہ انت تبا، نہیں یہی فرض ہے، مگر نفل پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ زکوٰۃ، اور کیا کہتے ہو؟ زکوٰۃ کا کہا، روزوں کا کہا، ہر بات کے جواب میں یہی کہتا رہا کہ یہی ہے۔ آپ فرماتے تھے یہی فرض ہیں، ان کے علاوہ پڑھ لو تو سنت ہے، نفل ہے۔ وہ جب جاننے لگا، اللہ کے نبی کہتا ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا۔ یہ پختہ ارادہ، ایک نماز میں بھی اس نے نہیں پڑھی، صرف ارادہ کیا ہے کہ میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میں مستقل پڑھتا رہوں گا۔ یہ سنتے ہی اللہ کے نبی کہتے ہیں من سرہ الی ینظر من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا الرجل، جو بندہ جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ ابھی پڑھا نہیں ہے، اس نے کوئی سنتیں کوئی فرض ادا نہیں کیے، صرف پختہ ارادہ کیا ہے، آگے بڑھا، آگے بڑھتا ہے، اونٹنی سے گرتا ہے، نیچے گرتا ہے، گردن پہ چوٹ آتی ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ آپ تیزی سے بھاگتے ہیں، بھاگ کے اس صحابی کو اس کے سر مبارک کو اٹھا کے اللہ کے نبی اپنی ران مبارک پہ رکھتے ہیں اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اتنی تیزی سے آپ بھاگے ہیں اور آپ نے بھاگ کے اس کو اپنی ران پہ اس کے سر کو رکھا ہے اور غور سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا تھا، میں اتنے غور سے یہ دیکھ رہا تھا، اس نے کیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا سے جا رہا تھا، جنت کے فرشتے آ کے اس کے منہ کے اندر جنت کے پھل داخل کر رہے تھے۔ کچھ نہیں کیا اس نے، صرف پختہ ارادہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ آج یہ اس لیے، آج یہ ارادہ کیجئے کہ ہم انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، پختہ ارادے کے ساتھ جائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، گھروں میں ماحول بنائیں گے۔ یہ سنتیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں ہیں، یہ آپ کی سیرت ہے، اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ یہ وہ رکعتیں، یہ وہ نمازیں ہیں جن کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ہے، ساری زندگی کا آپ کا معمول تھا۔ یہ سنتیں انشاءاللہ ہماری زندگی کا حصہ بھی بنے گی۔ فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، فرض تو ایک بھی چھوڑے تو بندہ اسلام کا، مکمل اسلام کا نہیں رہتا، وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سنتیں ہیں، فرض تو ہمارے اوپر لازم ہیں، یہ سنتیں ہم محبت کر کے ادا کریں گے۔ ان سنتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہماری جو فرضوں کی کمی ہوگی ان فرضوں کی کمی کو بھی پورا کر دے گا اور جنت پہ محل بناتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور سفارشیں اور اللہ کی رحمت اور بہت کچھ لے کے دیتا ہے۔ یہ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ تم کچھ کر کے آؤ، میرے نبی کا کہنا مان کے آؤ۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ سنتیں ہم نے اسے دل جان سے تسلیم کرنا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ